Whether you are a beginner or an experienced developer, Python is everywhere, from web development to AI and automation. So in this video, I will give you a quick introduction to Python, its history, and its real-world applications and its users. So let's get started. So there are some key points related to introduction to Python. So one by one, we will discuss all these. First point is Python is a popular programming language just because of its easy syntax. जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाइथन का जो सिंटैक्स रहता है द वे ऑफ राइटिंग द कोड सिंटैक्स इज द वे ऑफ राइटिंग द कोड वो बहुत ही सिंपल है जिसको आप बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर बैकग्राउंड का पर्सन नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का पर्सन एंड ऑल्सो इवन किड्स लाइक every category can learn Python, yes, as compared to the other languages. It was created by Guido van Rossum in the late 1980s. So ये जो डेवलप हुई थी वो 1980s में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी बाय गुइडो वैन रॉसम और फाइनली जो भी एग्जिस्टेंस में आई दैट इज इन द 1991. So it was released in 20th Feb 1991 at CWI. Okay, the name Python is said to become from the British comedy series Monty Python's Flying Circus. Now let's discuss the definition of Python. Python is a general purpose interpreted object oriented high level programming language with dynamic semantics. सबसे पहले समझेंगे कि जनरल पर्पस क्यों है हमारी पाइथन. यू कैन यूज इट फॉर मैनी एप्लीकेशंस. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप पाइथन की हेल्प से कर सकते हो. इट इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड कि ये सिर्फ यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या ये सिर्फ वेबसाइट ही बनाएगी या ये फिर सिर्फ आपकी गेम डेवलपमेंट ही करेगी. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पाइथन की हेल्प से कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेस. Let's come to the next point, that is interpreted. Means you are writing a code. जब आप एक लाइन लिख के कंप्लीट कर रहे हो पाइथन में, जब आप दूसरी लाइन पे जाते हो when you press the enter, it will give you the errors if there will be. अगर आपके कोड में पहली लाइन में कोई एरर है so it will give you that error. अगर वहाँ पे कोई एरर नहीं है so you can just move forward. जैसे एक लाइन कंप्लीट करते हो, your Python is showing you that you have error in your code. And also it will tell you on which line do you have error. It will also mention you the line. Also it will mention you the type of error. There are so many types of error like syntax error, like indentation error. Next is convert high level language to low level language. Yes, your interpreter is doing what? It is converting the high level language to low level language. Let's see what's the difference between both of them. First is input. इनपुट टेक्स एन एंटायर प्रोग्राम एज इट्स इनपुट. ये सबसे पहले क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा और उसको एज ए इनपुट लेगा. एंड इन इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. स्पीड के बारे में अगर बात करें तो लाइक इट एग्जीक्यूट्स फास्टर एंड एक्सिक्यूट स्लोअर. यस, हियर इज अ डिफरेंस कि आपका इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है बट एज कंपेयर टू कंपाइलर इट इज स्लो. ओके. Memory requires more memory in order to create object code, and if we will talk about interpreter, it requires less memory. Okay. Workload doesn't need to compile every single time, just once. Workload इस पे कम पड़ रहा है because आपको हर टाइम पे इसको like run करके error नहीं देखने हैं. That you are just writing the code. In the end, you are getting the errors, and then if you will debug the errors, then you will run the code. Okay. But here it has to convert high-level languages to low-level programs at execution. While you are running the code, while you are doing the code, on that time, it has to write the code. After that, it has to run the code. So execution जो है वो चली रहेगी, line by line execution होती रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर वर्कलोड पड़ जाता है पाइथन में. इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं बट एडवांटेजेस भी हैं. एरर्स. डिस्प्ले एरर वंस द एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड. डिस्प्ले एरर व्हेन ईच इंस्ट्रक्शन इज रन. मतलब वही है कि एरर्स जो है आपको लास्ट में शो करेगा कंपाइलर जब आप पूरा प्रोग्राम अपना लिख दोगे. एंड इंटरप्रेटर डिस्प्ले द एरर जब आप जैसे जैसे आप लाइंस लिख रहे हो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हो, देन यू विल गेट द एरर्स आल्सो एंड ऑन विच लाइन यू हैव एरर एंड विच काइंड ऑफ एरर डू यू हैव.
full form of OOP is Object Oriented Programming. OOP in Python is a programming style that uses objects to organize and design software. The OOP objects are created from templates called classes. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्लासेस का भी कंसेप्ट आ रहा है. ये एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट वी विल डिस्कस इट लेटर ब्रीफली, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू. ये हैं कुछ एक हमारे ओप्स कंसेप्ट्स: इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. अभी डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. मैंने आपको बता भी दिया है, द लैंग्वेज विच इज डिजाइन टू बी ईजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड राइट. जो ह्यूमंस को लिखना और समझना आसान है वो लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे इंग्लिश हो गई, जनरल लैंग्वेजेस हैं 0 and 1 के फॉर्म में. लास्ट लाइन थी हमारी कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with dynamic semantics. So why we are saying like Python is with dynamic semantics? It means that Python determines variable types at runtime. Why use Python? Easy to learn है, ये लिखने में easy है. इसको debug करना means debugging means bugs means error. Okay, bugs हो गए आपके error, ये mistakes जो आप लोग करते हो, और debug क्या हो गया उन errors को ठीक करना. And learn. Free. Python is free to use. You don't have to pay for it. You simply can download it because it is open source and also it is free of cost. Extensive libraries. There are a big, large standard library and many additional modules. Versatile है, ठीक है, यूज फॉर मैनी डिफरेंट टास्क. जैसे कि आप इसमें वेब डेवलपमेंट कर लो, डेटा एनालिसिस कर लो, ऑटोमेशन कर लो. दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज अ वर्सेटाइल. पॉपुलर इन डेटा साइंस. आपकी अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ये वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे भी पाइथन ही आप यूज़ कर रहे हो. पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस, यूज्ड इन मैनी फील्ड्स. अब कौन कौन सी फील्ड में आप इसको यूज़ कर रहे हो. आपसे कोई पूछ ही ले कि लाइक वेयर यू आर यूजिंग पाइथन, यू कैन से वी कैन use it for web development, data science, artificial intelligence, digital marketing, helps automate tasks. Python can automate tedious tasks such as checking databases, data visualization, financial analysis. आप ये सब टास्क इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इफ देयर विल बी एनी डाउट लेफ्ट, you can comment me and I will cover that part in the next video. And how to install PyCharm, वो मैंने last video में already बता दिया है, so you all can see the last video. So bye bye, take care.